Hello students, so today I am going to start the sum of first n terms of geometric progression. So let the concept name of the concept. The sum of first nth term of geometric progression. So ये सेम कंसेप्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी थी. What is the formula for sum of nth term of arithmetic progression? So Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. D is a common difference. A is the first term of AP. D is a common difference of AP. That was the formula for sum of nth term of arithmetic progression. But now we have to find the formula for the sum of nth term of geometric progression. So what is actual sum of nth term? So see the sequence. This is a sequence T1, T2, T3, T4, T5 up to Tn. हमें फाइंड करना है Sn. Sn का मीनिंग क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम वन फर्स्ट टर्म. सो दिस इज T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस अप टू Tn. दिस इज कॉल्ड एज Sn. So what will be the formula for sum of nth term of geometric progression? So जैसे ऐसा formula था ऐसा same formula, but we have to prove that formula by using the first theorem of the sum of nth term of geometric progression. So first of all, I will write the statement of theorem. The statement of the theorem is if A is first term and R be the common ratio of GP, where A and R both belongs to real number. A is not equal to 0, R is not equal to 0, दोनों भी 0 नहीं चाहिए, R is not equal to 1. Then the sum of first nth term of GP is, ये उसका फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस R. ये हमें प्रूव करना है. सो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, थ्योरम इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है. फॉर्मूला में प्रूव करना है. सो ये फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, ए इज नॉट इक्वल टू 0. फर्स्ट टर्म 0 नहीं हो सकती बिकॉज अगर फर्स्ट टर्म 0 है तो फिर उसे फर्स्ट टर्म क्यों कहना है. सेकंड टर्म को हम पहले टर्म फर्स्ट कंसिडर करेंगे. कॉमन रेशियो 0 कभी नहीं होता, डिवीजन 0 नहीं होती, रेशियो कभी 0 नहीं होता. आर इज नॉट इक्वल टू 1, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है. आर इज नॉट इक्वल टू 1. आर इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट? दिस इज आर, दिस इज सीक्वेंस 2, 2. This is a sequence, and this sequence is GP because A is first term, that is 2. and ratio कितना है देखो, 2/2 कितना है 1, 2/2 कितना है 1. So अगर 1 कॉमन रेशियो है तो उसका फॉर्मूला ये नहीं बन सकता. उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रूफ आई विल टेल यू what is the formula for sum of nth term of GP when R is equal to 1. So look at the proof. जिसे हम प्रूफ कहेंगे. Let A be the
first term and R be the common ratio of GP respectively. Therefore, SN is equal to T1 plus T2 plus T3 plus T4 up to what? Tn. कौन सी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या होती है? T1 होती है, सेकंड टर्म T2 होती है, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4 and the last term is what? Tn. So first term, how to find the first term of geometric progression? That is A. Second term is AR. So therefore Sn is equal to A plus AR plus AR square plus AR cube up to AR raised to n. This is equation first. A first term is A, second term is AR, third term is AR square, fourth term is AR cube, and what is the nth term? AR raised to n minus 1. AR raised to n minus 1. So this is Sn. That is Sn. A plus AR plus AR square plus AR cube, that is up to what? AR raised to n minus 1. So हम इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे. Each term multiplied by R. Therefore it becomes R into Sn. इसको R से मल्टीप्लाई किया AR, इसको R से मल्टीप्लाई किया AR स्क्वायर, इसको R से मल्टीप्लाई किया AR क्यूब. इसको अभी 4 टर्म तो हो गए, सफिशिएंट है. इसको R से मल्टीप्लाई करने के बाद ये R का पावर 1 और माइनस 1 कट हो जाएगा, दैट इज AR रेस्ट टू n हो जाएगा. इसकी पहली टर्म क्या हो जाएंगी? AR रेस्ट टू n माइनस 1. सो क्या किया मैंने? सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से R से मल्टीप्लाई किया, R इंटू Sn. फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, A इंटू R इज AR, AR इंटू R इज AR स्क्वायर, AR क्यूब. इसको R से मल्टीप्लाई, इसको भी किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गए. अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अपने चार टर्म हो गए. इसको R से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो R रेज़ टू 1, R रेज़ टू n minus 1 is R रेज़ टू n, right? Now A into R raised to n minus 1, this is the multiplication when we multiply R to equation first. Now consider equation second. Now subtracting second from first, second from first subtract करना है, that becomes Sn minus R into Sn, Sn minus R into Sn. A as it is, AR cancel, this cancel, ये भी cancel, cancel होने के बाद ये और ये cancel, only remaining is what? So this is minus A into R raised to n. प्रैक्टिकली देखो सब्सट्रैक्शन कैसा है, यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ, ये माइनस 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 माइनस, सबका साइन चेंज हो गया. दिस प्लस AR माइनस AR कैंसल, प्लस AR स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर कैंसल, प्लस AR क्यूब माइनस AR क्यूब कैंसल, दिस टर्म कैंसल. गॉट इट? सो व्हाट इज ओनली रिमेनिंग? दिस टर्म A and this minus AR raised to n. ये सिर्फ ये टर्म रिमेनिंग रह गई. Now finally you can taking Sn common, in bracket 1 minus R. Here RA common, 1 minus R raised to n. So here he has given R is not equal to 1. R is not equal to 1. It means 1 minus R is not equal to 0. So 1 minus R is not equal to 0. जैसे डिवाइड करेंगे हम इधर. So therefore it becomes Sn is equal to A into 1 minus R raised to n divided by 1 minus R, and this is a formula for sum of nth term of geometric progression when R is less than 1. R अगर less than 1 है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना है,
r is not equal to 1, a is not equal to 0, r is also not equal to 0. So this is a formula when r is less than 1. But when r is greater than 1, for r is greater than 1, अगर r greater than 1 है, greater than 1 कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5/2, 3/2, ये 1 से greater है. So that's why apply the second formula for Sn. Sn is equal to a into r raised to n minus 1 divided by r minus 1. ये फॉर्मूला, पहला जो फॉर्मूला है वो r इज लेस देन 1 के टाइम में है, सेकेंड फॉर्मूला r इज ग्रेटर देन 1 के टाइम में है. सो द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r. अगर r लेस देन 1 है, लेस देन 1 कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर होता है, सो दैट इज लेस देन 1. r तो नेवर इक्वल टू 0. अगर r ग्रेटर देन 1 है तो अप्लाई करना, सिर्फ इसको रिवर्स करना है, r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r. दिस इज r इज लेस देन 1, दिस इज r इज ग्रेटर देन 1. बट सपोज फॉर r इज इक्वल टू 1, अगर r इक्वल टू 1 है, सो वी राइट हियर केस इफ r is equal to 1. So Sn is equal to फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, अप टू n, ये टर्म. सो इसका Sn का फॉर्मूला a इंटू कॉमन रेशियो तो ये होता है n टाइम्स a इंटू n. दिस इज Sn. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर n टाइम्स है तो इससे 2n. 3 plus 3 plus 3 plus 3, it is 3n when r is equal to 1. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 up to n रहे तो उसका Sn कितना आता है? 4n होता है, राइट. सो a plus a plus a plus a up to n टाइम्स है तो दैट इज an, दैट इज an. सो Sn का एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला. r is less than 1, r is greater than 1 and r is equal to 1. So okay, so this is a formula for sum of nth term, first nth term of geometric progression. Okay, now ready for the exercise 2.2. 2.1 is almost completed. So right now the exercise 2.2, this exercise is completely on the sum of nth term of geometric progression. So sum of nth term of geometric progression के दो फॉर्मूले हैं. सो कौन सा कब अप्लाई करना ये डिपेंड करता है. अगर r ग्रेटर दैन 1 हो तो सेकेंड फार्मूला अप्लाई करना है, अगर r लेस दैन 1 है तो फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करना है. सो सी द फोर्थ फॉर एग्जांपल ऑन GP वी हैव टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म. सो वन बाय वन वी कैन सॉल्व दिस. सो फर्स्ट टर्म, सो ये यहाँ पर लेट a 3, 6, 12, 24. First term is 3, r is 2 which is greater than 1. r कितना है? 2 है. 6 by 3 2, 12 by 6 2, 24 by 12 2. So which is greater than 1. So we know that, right? The formula for Sn, we know that Sn is equal to a into r greater than 1 है, so r raised to n minus 1 divided by r minus 1. It is greater than 1. So a is 3. 2 raised to n minus 1 divided by 2 minus 1. So it is 3 into 2 raised to n minus 1. What is 2 minus 1? Is 1. So answer कितना आ गया? Sn is equal to 3 into 2 raised to n minus 1. वेरी सिंपल प्रोसेस. यहाँ पर प्रिकॉशन क्या लेना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही प्रिकॉशन लेना है. सो सी द सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, द लेट p q स्क्वायर बाय p, q बाय p स्क्वायर. अब ये तो लेटर्स है ए पी क्यू. सो ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है ये तो यहाँ से पता तो नहीं चलेगा. सो यू कैन अप्लाई एनी फार्मूला और बोथ फार्मूला. सो हियर फर्स्ट टर्म इज p, रेशियो फाइंड करो r कितना है? q बाय p, r इज q बाय p.
ये कांस्टेंट है बिकॉज ही हैज गिवन जीपी है मीन्स आर कांस्टेंट है, चेक करने की जरूरत है। अगर चेक भी करना है वेरीफाई भी करना है तो थर्ड बाय सेकंड करो, क्यू स्क्वायर बाय पी अपॉन क्यू, 1 क्यू कैंसिल, क्यू बाय पी बन जाएगा। सो हम इधर ये केस अप्लाई करेंगे। केस फर्स्ट, आर इज इक्वल टू क्यू बाय पी कंसिडर करेंगे लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो एस एन का ये फॉर्मूला ये इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ये इज पी, 1 माइनस आर इज क्यू बाय पी अपॉन 1 माइनस क्यू बाय पी। अब इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर p 1 माइनस क्यू बाय पी रेस टू एन डिवाइड बाय p माइनस क्यू अपॉन p। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया p माइनस क्यू अपॉन p, ये p ऊपर जाएगा, p इंटू p स्क्वायर, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू इन ब्रैकेट 1 माइनस क्यू बाय पी रेस टू एन, ये एस एन आ गया। ओके, वेरी सिंपल एस एन अप्लाई। मैंने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया। अभी सेकंड केस ऐसे है, केस नंबर सेकंड। अगर मैंने r इज इक्वल टू क्यू बाय पी है, इसको मैंने ग्रेटर देन 1 कंसिडर किया। दोनों भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, बिकॉज क्यू बाय पी आर द लेटेस्ट, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट। आइदर लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। सो हियर एस सी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये इज पी, क्यू बाय पी रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इज क्यू बाय पी minus 1. So p in bracket क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस p डिवाइडेड बाय p, q माइनस p डिवाइड p इंटू p स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, इट बिकम्स p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q माइनस p इन ब्रैकेट q by p raised to n minus 1, this is SN. ओके, ये दो आंसर है इसके, बिकॉज विद बोथ केसेस कंसिडर किए हैं। अब आप एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जांपल क्या है, 0.7 0.07 0.007। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये इज इक्वल टू 0.7 है। आर कैसे फाइंड करेंगे, 0.07 डिवाइडेड बाय 0.7। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/70, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पर 0 रख दिया, 7/70 हो जाएगा। 0.7 मीन 0.70 ऑल्सो टू बी सेम, एक ही होता है उसका मीनिंग। 7/70 इज 1/10, 1/10 मीन 0.1। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.1। 0.1 ही वैल्यू लेस देन 1 है। सो देयरफॉर अगर लेस देन 1 है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कितना है 0.7, आर कितना है 0.1, रेस टू कितना n, 1 माइनस आर 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1। सो दिस इक्वल टू 0.7, 1 माइनस 0.1 इज 0.9। ये डिफरेंस कैसे लेते हैं, 1.0 माइनस 0.1, इट इज 0.9। गॉट इट। इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.1 रेस टू n डिवाइडेड बाय, इधर डिवीजन तो हो गया अपने, इधर ये सब्सट्रैक्शन तो हुआ यहाँ पर, 0.7 अपॉन 0.9 इज 7/9, ये डेसिमल कट हो गया। 1 माइनस 0.1 रेस टू n, दिस इज SN। ये उसका ऐसी थर्ड का आंसर।
नाउ विल ट्राई द एग्जाम्पल नंबर 4th। अब 4th एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। Example number 4th. What is this? Root 5 minus 5 minus 5 root 5 minus 25। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है? रूट 5 है, ये उसकी फर्स्ट टर्म है। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे यार? -5 बाय रूट 5 -5 बाय रूट 5 कितना होता है? रूट 5 होता है, माइनस रूट 5। नेगेटिव है मीन्स डेफिनेटली लेस देन 1 है, नेगेटिव मीन्स डेफिनेटली लेस देन 1। सो एसएन का फॉर्मूला एसएन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन अपॉन 1 माइनस आर। सो आर पे डिपेंड है विच फॉर्मूला शुड बी यूज फॉर दिस केस। सो आर इज negative root 5 means less than 1, so apply this formula। so here a is root 5 in bracket 1 minus root 5 raised to n divided by 1 minus root 5। so यही उसका आंसर है एसएन। सो यहाँ पर मिस्टेक ऐसा नहीं करनी चाहिए, माइनस इंटू माइनस नहीं हो सकता, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों नहीं होगा? बिकॉज एन इज नॉट नोन, हमें पता नहीं वो इवन पावर है या ऑड पावर है या कुछ और पावर है। सो वी डोंट नो दैट, दैट्स व्हाई वी कांट राइट दिस माइनस इंटू माइनस प्लस, हम ये कर नहीं सकते। So this is SN is equal to root 5 in bracket 1 minus into minus root 5 raised to n upon 1 minus root 5. Okay, after this we will take immediately next example। now see the second example from the same exercise 2.2। अब ये सब example SN के ऊपर है, right? so see, first term is 2, ratio is -2/3, we have to find S8, sum of first 8 terms। so look at this solution of first example। let what? a is equal to 2, r is equal to -2/3। so mention here less than 1। ये less than 1 लिखना जरूरी है बिकॉज दिस इस पे डिपेंड है विच फॉर्मूला शुड बी अप्लाई हियर, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। वी हैव टू फाइंड S8 मींस n इज इक्वल टू कितना है? 8 है। ओके, सो राइट द फॉर्मूला SN लेस देन 1 है तो ये इंटू ब्रैकेट 1 माइनस आर रेस टू n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। सो S8 इज इक्वल टू ये इज 2 इंटू 1 माइनस आर इज -2/3 रेस टू n इज 8 डिवाइडेड बाय 1 -2/3। सिर्फ r की जगह पर -2/3 रखा है, r की जगह पर -2/3 रखा है। सो दैट बिकम्स 2 इंटू 1 माइनस, निगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव होता है 2/3 रेस टू 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3। सो 2 इंटू 1 माइनस 2 रेस टू 8, अभी 2 रेस टू 10 1024 होता है, 2 रेस टू 10 1024, 2 रेस टू 9 512, 2 रेस टू 8 256। कितना होता है? 256। 3 रेस टू 8 729 divided by 3 plus 2 is 5/3। so this is 2 into 729 minus 256 divided by 729 into 3/5।
ये डिनोमिनेटर में जो 5/3 है, टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल बिकम्स व्हाट, ये ऊपर गए तो 3/5 हो जाएगा, 5/3 का 3/5 मल्टीप्लीकेशन, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 729 माइनस 256 डिवाइडेड बाय 729, इट इज 2 इंटू ये 3, 12 माइनस 5 इज 7, 7 माइनस 3 इज 473 डिवाइडेड बाय 729, 256 होता है क्या, बराबर है 256 ही होगा। ये यहाँ पर S8 फाइंड करना है हमें, नॉट S6 नहीं, 8 फाइंड करना है। सो ये 6 हो जाएगा यहाँ पर, करेक्शन इज देयर, 2 raised to 6 is 64, 3 raised to 6 is 729, 729 minus 64, with correction ये 6 फाइंड करना है। सो दिस बिकम्स ये 5, ये 6, ये 6 डिवाइडेड बाय 729। अब इसको सॉल्व करना है, 5 से कैंसिल 1, 5 3 are 15, 5 3 are 15, ये 3 से इधर डिवाइड करेंगे, 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3, so here becomes 2 into 1 3 3 divided by 243, so answer is 6 6 2 266 upon 243, this is what, S6, so ये कितना है, S6 है, हमें फाइंड करना था S6, ओके। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। नाउ वी विल ट्राई द फॉर सेकंड एग्जांपल। A second example. So let given is what, S5 1023 means therefore n is equal to what, 5, r is equal to 4, 4 is greater than 1. Second example में r4 दिया है which is greater than 1, so we have to apply the second formula, Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, r raised to n minus 1 upon r minus 1, so S5 ये फाइंड करना है, R4 है 4 raised to 5 minus 1 डिवाइडेड बाय 4 minus 1, S5 गिवन है 1023, ये 4 raised to 5 चेक करो 1024 है, 4 minus 1 is 3, 4 raised to 5 which is equal to 2 raised to 10, दोनों सेम होता है, हाउ, 4 means 2 square, 2 square raised to 5, 2 square raised to 5 into 2 is what, 10, 2 raised to 10, so both values what, 1024, 1024 minus 1, 1024 minus 1 is 1023 by 3, divide is right side में क्या, left side में 1023 है, so here answer is a is equal to 1023 into 3 divided by 1023। ये अगर टर्म इधर ट्रांसफर करना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर जाएगा, सो ये होगा कैंसिल। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 3, सो हियर आंसर ऑफ सेकंड ए इज इक्वल टू 3, सो ए की वैल्यू 3 आ गई, ये दूसरा आंसर है। यहाँ पर आर निगेटिव था, यहाँ पर आर पॉजिटिव था, सो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया। सो जीपी का सम ऑफ nth टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द वैल्यू ऑफ आर, इफ इट इज निगेटिव देन अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला, इफ इट इज पॉजिटिव अप्लाई सेकंड फॉर्मूला। सो विल टेक मोर एग्जांपल इमीडिएटली आफ्टर दिस। Now see the next example. Example number 3rd. There are also 2 examples in 3rd. So solution one by one. First का answer. For a GP, if A is equal to 2, R is equal to 3,
ये 2 है, R3 है, एस एन इज ऑल्सो गिवन 242. हमें फाइंड करना है n. ये n फाइंड करना है मीन्स सम ऑफ nth टर्म 242 है. सो ये 242 कितने नंबर्स की सम है? वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन. लेट a is equal to 2, r is equal to 3, so which is greater than 1. Sn is equal to 242. So Sn का फॉर्मूला लिखो पहले. r raised to n minus 1 divided by r minus 1. Sn दिया है 242. a is 2 in bracket 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. r की जगह पे सिर्फ 3 रखा मैंने. Sn भी रखा. हमें क्या फाइंड, ये भी रखा, हमें n फाइंड करना है. ये 2 इंटू 3 raised to n minus 1 upon 2. 3 minus 1 is 2. ये 2 और दिस 2 कैंसिल. ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में कट हो गया. सो 3 raised to n minus 1 is equal to 242. ये माइनस 1 राइट, ये प्लस 1 हो जाएगा. दिस इज 3 raised to n is equal to 242 plus 1. So this is 3 raised to n is equal to 243. 3 raised to n is 243. अभी अगर चेक करेंगे 243 ये 3 raised to 5 है. 243 कितना है? 3 raised to 5. 3 raised to n is equal to 3 raised to 5. Our answer is what? n is equal to 5. So we can equate the power when base are equal, base are same. So अगर बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर सकती है. बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स है. सो n इज इक्वल कितना आ गया? 5 आ गया. ये बन गया फर्स्ट का आंसर. नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेकंड एग्जांपल. सो फर्स्ट रीड द सेकंड एग्जांपल केयरफुली. फॉर जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. पहले 3 टर्म का सम दिया है. पहले 3 टर्म का सम कितना मीन्स S3 दिया है 125. एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स. पहले 3 टर्म का उसके आगे के 3 टर्म्स का सम मीन्स S3 प्लस 3 मीन्स S6 हो गया. S6 कितना है? 27. बट 125 प्लस 27 दैट इज समथिंग 152 आएगा. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ r. हमें r फाइंड करना है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है. ओके, सो दिस इज एक्चुअल एग्जाम्पल. ये फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया. नाउ आई रिव्यू दिस. देखो अभी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. देयरफॉर S3 is equal to 125. S3 is equal to what? 125. Equation first. The sum of next 3 terms, therefore it becomes S6 125 plus 27. आगे की 3 टर्म्स में पहले 3 तो है ही है, उसके आगे की 3 टर्म्स दैट बिकम्स S6. S6 कितना है? 125 plus 27. That's why S6 is equal to 152. Equation second. अब यहाँ पर हमें R फाइंड करना है. सो आप यहाँ पर कौन सा ही फॉर्मूला अप्लाई करो? मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. Therefore we know that Sn is equal to A into R raised to n minus 1 upon R minus 1. S3 is equal to A into R raised to 3 minus 1 upon R minus 1. S6 is equal to A into R raised to 6 minus 1 upon R minus 1. S6 और S3. So therefore अब हम डिवाइड करेंगे. R raised to 6 minus 1 divided by R minus 1
यहाँ पर आर क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, एक है 152, दूसरा कितना है 127, 152 अपॉन 127। अब एक्चुअल हम इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इसको करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, ये 6/s3 किया, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड किया बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। सो देखो अभी ये कैंसिल हो जाएगा, ये r माइनस वन भी कैंसिल, न्यूमरेटर r⁻6 माइनस 1, डिनोमिनेटर r क्यूब माइनस 1, इट इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 127, 152 डिवाइडेड बाय 127। अभी r⁻6 है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं r3 होल स्क्वायर माइनस 1, 3 इंटू 2 6 ही है, सिर्फ हमें यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, आर क्यूब माइनस 1, दूसरा आर क्यूब प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 152 डिवाइडेड बाय 127। ये टर्म कैंसिल, आर क्यूब माइनस 1 आर क्यूब माइनस 1 कैंसिल। We have to apply the identity a square minus b square. That's why I written r⁻6 is r cube whole square. R cube whole square minus 1 square. So hence r cube plus 1 is equal to 152 divided by 127. R cube is equal to 152 divided by 127 minus 1. ये plus 1 right में minus 1. So here this is r cube d is equal to 152 minus 127 divided by 127. ये 127 कहाँ से आ गया, तो 125 है, ये 125 है, कितना है 125, करेक्शन इज दिया। ये 125 है, not 127. Now finally I will write here r cube is equal to 152 minus 127 125, 152 minus 125 divided by 125. So it is become 27 divided by 125. So 27 को मैं 3, 125 को 5 क्यूब करूँगा, because we know that 3 cube is equal to 27, 5 cube is equal to 125. So again power equal है, तो we can equate the base. So what is the value of r? R is 3/5. So r की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5. So this is the solution. Okay, so today is enough examples. 3 examples मैंने लिए, हर एक example में 2 थे, means actually we have done 6 examples and one more theorem. That theorem on what? The sum of nth term of geometric progression. The sum of first nth term of geometric progression, that is denoted by SN. There are 2 cases important. r is less than 1 or r is greater than 1. If r is less than 1, we have to apply the Sn is equal to a into 1 minus r⁻n upon 1 minus r. And if r is greater than 1, अगर r greater than 1 है, so we have to apply Sn is equal to a into r⁻n minus 1 upon r minus 1. So there are lots of examples on the same concept. That example we'll take on the next video lecture. So okay, so today we'll stop here. Thank you very much.